Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 4 Emerging Technologies in Global Business Environment. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन। इस सब्जेक्ट की और सभी यूनिट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज भी अपलोड हो चुकी है। एक बार आप जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है? पीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, नेशनलिटी, रीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल बैकग्राउंड, सोशल क्लास एंड अदर distinguished categories establish political agenda that are based on these identities. This politic strategy is known as identity politics. जो politics जो है nationality, region या gender oriented या social background oriented होती है, उस politics को जो है identity politics कहा जाता है, जो कि इनके बेस पर होती है। Identity politics is closely related to the notion that some societal group are opposed and start with an examine of that operation. Issues and challenges of identity politics. Division and conflict. Number 1 issue जो है division and conflict है। Identity politics can create division and conflict among different group of people. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है क्रिएट कर सकती है डिवीजन और कन्फ्लिक्ट ग्रुप के पीपल बीच में, जैसे कि जो ग्रुप है, ए ग्रुप हुआ पीपल का और बी हुआ, उनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, एज दे फोकस ऑन देयर ओन स्पेसिफिक आइडेंटिटीज रेदर देन फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक किसी स्पेशल ग्रुप पर ही फोकस ज्यादा होता है, ना कि सभी के लिए। इस वजह से जो है दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती। सेकंड है लीविंग सम पीपल आउट। समटाइम्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फोकसेस ओनली ऑन द concern of certain identity group, which can exclude or ignore the experiences of other group. This can make it harder to work together and address issues that affect everyone. Stereotyping and oversimplification. Identity politics can reinforce stereotype by assuming that everyone within a particular identity group thinks and act the same way. This can oversimplify people's experience and prevent deeper understanding and collaboration. Overlooking intersecting identity. Identity politics often force to consider the way in which people multiple identities insert. This means that individuals who face discrimination or disadvantages due to overlapping identities may be left out of the conversation. The rise of authoritarianism and its impact on geopolitics. A form of administration is known as authoritarianism. It is characterized by the denial of political pluralism, the deployment of a potential central authority to uphold the statute, and a weakening of the rule of law, the separation of power, and democratic voting. Numerous topologies characterizing various authoritarian type of administration have been deployed by political scientists. Autocratic and government can be based on the rule of a party or the military. Political वैज्ञानिकों द्वारा प्रशासन के विभिन्न अधिनायकवादी प्रकारों की विशेषता वाले कई प्रारूपों का विकास किया गया है। इन authoritarian recognize the freedom to create opposition political parties or other alternative political organization to challenge the governing party for power is either several restricted or नॉन एग्जिस्टेंट। अधिनायकवादी शासनों में सत्ता के लिए सत्ताधारी पार्टी को चुनौती देने के लिए विपक्षी राजनीतिक दल या अन्य वैकल्पिक राजनीतिक संगठनों को बनाने की स्वतंत्रता या तो गंभीर रूप से प्रतिबंधित है या ना के बराबर है। Characteristics. Political repression and the exclusion of prospective revival are used to maintain extremely concentrated and centralized government control, to rally people behind
the reclaim objective, it makes use of political parties and large-scale organization. According to Adam, authoritarian equilibrium rests mainly on lies, fear, and economic prosperity. In addition to the arbitrary deprivation of civil liberties, frequently embraces the information and unchecked exercise of political power. A leadership that is self-appointed and even if elected cannot be displayed by citizens, free choice among competitors and little tolerance for substantial opposition. नागरिक स्वतंत्रता के मनमाने वंचन के अलावा अधिनायकवाद अक्सर राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक और अनियंत्रित अभ्यास को गले लगा लेते हैं। एक ऐसा नेतृत्व जो स्वनियुक्त और यहाँ तक कि अगर निर्मित नहीं किया जा सकता है तो प्रतियोगिताओं के बीच नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान से विस्थापित नहीं किया जा सकता है और थोड़ी सहनशीलता फॉर अपोजिशन। Democracy. Democracy is a form of government in which power is vested in the people who exercise it either directly or through elected representative. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें पावर होती है पीपल के पास वोट करने की। वही डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं कौन हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव है, किसको हम सेलेक्ट करते हैं वो वोट करा जाता है उसमें और इसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल इक्वालिटी। Democracy promotes the principle of political equality, meaning that every citizen has an equal opportunity to participate in the political process, vote and hold public office. Rule of law. Democracy emphasizes the rule of law, where everyone, including the government, is subject to the governed by the law. This ensures the protection of individual right and prevent आर्टिवरी एक्सरसाइज ऑफ पावर। डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी होती। डेमोक्रेसी जो है प्रमोट करती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसका मीनिंग हुआ हर एक जो नागरिक है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेट करने की पॉलिटिकल प्रोसेस में, वोट करने के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी। इलेक्शन आर ए फंडामेंटल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दे शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन जो है फंडामेंटल फीचर है डेमोक्रेसी के और ये जो है टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। बी फ्री फ्रॉम एनी फ्रॉड एंड प्रोवाइड ए फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एलिजिबल सिटीजन पार्टिसिपेट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। और ये फेयर होना चाहिए, फेयर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसमें हर एक जो भी एलिजिबल सिटीजन है 18 साल से ऊपर वो वोट दे सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया। डेमोक्रेसी on the principle of freedom of speech, press and assembly, citizens have the right to express their opinion, access diverse source of information and engage in peaceful protest. Type of democracy. Democracy के type क्या क्या हैं? Direct democracy. In a direct democracy, citizens directly participate in decision making through initiative, referendum और टाउन हॉल मीटिंग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है सिटीजन जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, किसके थ्रू? इनिशिएटिव, टाउन हॉल मीटिंग में के थ्रू। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म वेयर सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। दिस सिस्टम अलाउ फॉर ब्रॉडर पार्टिसिपेशन एंड इज यूज्ड इन ए कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। जैसे कि हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं, सभी जने वोट करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उनका विनर होता है, उसी को जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव ब्रांच is accountable to the legislature. The parliament select the government and the head of state may be a monarch or a ceremonial president. Countries like the United Kingdom, Canada and Australia follow this model. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है? इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है गवर्नमेंट को और
हेड ऑफ स्टेट, ये सभी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये अप्लाई कहाँ होती है? यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में इस मॉडल को फॉलो करा जाता है। नेसेसरी कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या कंडीशन है सक्सेसफुली वर्क करने के लिए डेमोक्रेसी को? एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन का जो पार्टिसिपेशन हो वो एक्टिवली हो। डेमोक्रेसी रिक्वायर एन एंगेज्ड एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, जो वोटिंग वगैरह हो उसमें जो है सिटीजन जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ये ना हो कि 50% जने भी वोट ना करें। सेकंड है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी में जो ह्यूमन के राइट हैं उनका जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए। ह्यूमन राइट जैसे कि प्रमोटिंग इक्वालिटी, सिक्योरिटी, बोलने का अधिकार हुआ, और ये सभी चीज जो है प्रोटेक्ट होनी चाहिए। Transparent and accountable governance. Democracy thrives when there is transparency in government action. Transparency और accountable governance होनी चाहिए। Peaceful transfer of power. जब कोई भी पावर ट्रांसफर हो तो पीसफुली हो, किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए अपोजिशन पार्टी के द्वारा, और ये सभी जो है नेसेसरी कंडीशन है सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। द राइज ऑफ चाइना एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, चाइना से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल ट्रेड पे? द राइज ऑफ चाइना हैज हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है चाइना के बढ़ने से ग्लोबल ट्रेड पर कुछ दशकों से। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, China rapid economic growth and industrialization have transformed it into the world's second largest economy. चाइना जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है क्योंकि उसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी वजह से। The country has become a major manufacturing and export hub, producing a wide range of good at competitive price. चाइना जो है वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है प्रोडक्ट और सेल करता है, और वो भी कम प्राइस में। इस वजह से चाइना जो है एक साथ बड़ा है और इसने जो है इफेक्ट डाला है और ग्लोबल ट्रेड पर। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, चाइना जो है फ्रेंड्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वर्कर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट की वजह से जो कंपनी है बड़ी बड़ी वो वहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन प्लांट बनाती हैं, जिससे कि उन्हें कॉस्ट कम आती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है सस्ते में हो जाता है, इसी वजह से उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। चाइना लो कॉस्ट लेबर, लार्ज डेमोक्रेटिक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैव अट्रैक्टेड फॉरेन कंपनी टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन द कंट्री। चाइना की लो कॉस्ट लेबर हुई, लार्ज डेमोक्रेटिक मार्केट हुआ और इन्वेस्ट जो कराया उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसी वजह से वो अट्रैक्ट कर पाता है फॉरेन कंपनीज को, जिससे कि वो सेटअप करें मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन प्लांट उनकी कंट्री में। मैनी ग्लोबल सप्लाई चेन है नाउ हैवीली रिलाई ऑन चाइना फॉर वेरियस प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट, बहुत सी जो है ग्लोबल चेन सप्लाई जो है डिपेंड है चाइना के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट और कंपोनेंट के लिए। एक्सपोर्ट पावर हाउस, चाइना जो है एक्सपोर्ट पावर हाउस भी हो गया है। चाइना हैज इमर्ज एज ए मेजर एक्सपोर्ट ऑफ गुड टू मार्केट अराउंड द वर्ल्ड। इट एक्सपोर्ट रेंज फ्रॉम कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल एंड मशीनरी टू स्टील, chemicals and automotive part. China export oriented approach has contributed to its trade surplus with many countries. चाइना से जो है हर तरीके के सामान एक्सपोर्ट होते हैं, क्यों मैन्युफैक्चर करता है, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, टेक्सटाइल हुआ, कोई भी जो है ऑटोमोटिव पार्ट्स हुए, केमिकल हुए, वो सभी जो है चाइना एक्सपोर्ट करता है, जिससे उसे प्रॉफिट होता है। Shifting global value chain. China rise has promoted some reconfiguration of global value chain. Companies and countries have adjusted their sourcing and production strategies to adapt China's strength as a manufacturing hub and emerging consumer value मार्केट। जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो शिफ्ट हुई है चाइना की, और जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो चाहती हैं कि हमारे जो है ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो किस तरीके से होगा? जो उनकी कॉस्ट है बनाने के प्रोडक्ट वो कमाएगी तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो चाइना में ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं। इसी वजह से चाइना को जो है ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, चाइना ग्रोथ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हैज geopolitical implication. It has enabled China to expand its soft power to assert itself
as a major player in global affairs. It has also raised concern about economic dependencies and political geopolitical tension. चाइना के एक साथ इतना ज्यादा बढ़ने से जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन और जो है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इंक्रीज हुई। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।